Very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right. So, dear students, we can start with the mole concept. In first class, we can discuss about the matter and its classification. Now, in today's class, we can discuss about some of the laws that can be applicable on matter. Right. This law is given by different scientists with their different approach, and all this law can be regarding matter. मीन्स मैटर क्या होता है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन केमिकल रिएक्शन अंडरगो, ऑल दिस थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ. जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, ये भी एक लॉ ने हमको बताया था. सो टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट all the laws that can be present in this chapter, that is मूल concept. तो सारे लॉस को हम लोग क्या करेंगे आज अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे. राइट. तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज लॉस को पढ़ने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ that is given by Dalton's, and it is called as Dalton's atomic theory. So let's start with the introduction part. So there are large number of objects around us which we can see and feel. Anything that can occupy space has a mass is called as matter. तो हमने last class में definition देखा था what is meant by matter. तो matter is nothing but anything which having mass and it can occupy space is called as matter. Matter मतलब ऐसी जो भी चीज जिसपे mass and occupy space करता है and can be filled by one of our five sense organ are called as matter. Now John Dalton, who firstly developed a theory on the structure of matter. किसने डेवलप किया था? John Dalton. And this theory later on we can recognize as a Dalton's atomic theory. You just underline this portion. It is a Dalton's atomic theory. So let's begin with the assumptions of the Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory ने क्या-क्या assumption दिया है, उसके बारे में हम लोग आज discuss करेंगे. तो first we should discuss about the Dalton's atomic theory. Now first point of Dalton atomic theory is that matter is made up of very small undivisible particle called atom. Means हर एक मैटर किससे बना हुआ है? Matter is made up of very small undivisible particle. Now what is meant by undivisible particle? Right, undivisible particle means what? The particle which cannot be divided into further smaller component are called as undivisible particle. तो यहाँ पे Dalton's theory का क्या बोलना था कि matter is made up with the undivisible particle called atom. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको matter consider करते हैं तो हर एक मैटर जो रहता है अल्टीमेटली ये किससे बना हुआ है? तुम्हारा एटम से बना हुआ है. किससे बना है? एटम. The atom is the smallest undivisible particle. Undivisible particle which cannot be dissociated further. Now, if you know the structure of atom, हमने 9th standard में पढ़ा, शायद 10th में भी तुमने देखा है. Atom is a spherical. कोई भी जो एटम रहता है वो एटम कैसा रहता है? स्फेरिकल रहता है. At the center of atom there is a presence of nucleus and it is called as, surrounding is called as extranuclear part. Nucleus consists of proton plus neutron and extranuclear part consists of electron. And these three are called as subatomic particle. Proton, neutron and electron is called as subatomic particle. तो डाल्टन्स का क्या बोलना था कि एटम जो रहता है इट इज इनडिविजिबल रहता है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और हर एक मैटर जो किससे बना है? एटम से बना है. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. हमने देखा है H2 मैटर है, बराबर है? H2 मैटर है ना. H2 किससे बना हुआ है? इट कैन मेड अप विद टू टाइप ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. When this hydrogen and oxygen can combine in a specific manner in particular ratio, it can form H2O compound.
राइट नाउ अब ये ऑक्सीजन जो एलिमेंट है किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब बहुत सारे ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन एटम को हम लोग कंबाइन करेंगे तो इससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन एटम। तो बहुत सारे जब ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन बनेगा, बहुत सारे जब हम लोग हाइड्रोजन एटम को कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग चीज क्या सीख सकते हैं कि फर्स्ट कंसेप्ट क्या था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, कि हर एक जो मैटर है वो अनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Now let's move on the second postulates given by Daltons. So according to second postulates, all the atom of a given element, you just see here, all the atom of a given element is identical in all respect, that is mass, shape, size, etc. तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब अगर कोई एलिमेंट्स लेते हैं उसके जितने भी एटम्स हैं, ऑल दिस एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज इसका मास, शेप एंड साइज एटसेट्रा। ना इसको हम लोग क्या करते हैं? इलैबोरेट करते हैं। नाउ लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स क्या होता है? यू रिमेंबर? एलिमेंट्स मीन्स it is a one type of matter which consists of only one type of atom. ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट which consists of only one type of atom is called as element. अभी अगर मान लो ये एक पेन है, राइट, ये एक मार्कर पेन है। अगर मैं इस मार्कर पेन के आइडेंटिकल 10 क्लोन बनाता हूं, सपोज मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया और इस मार्कर के मैं क्या कर रहा हूं? इस मार्कर पेन के 10 आइडेंटिकल बनता, या समझ लो मुझे ले लो, अगर मैं अपने जैसे 10 और आइडेंटिकल को बनाता हूं तो वो जो 10 आइडेंटिकल है उनका शेप कैसा जैसा रहेगा? मेरे जैसा रहेगा। उसका मास कैसा रहेगा? मेरे जैसा रहेगा। उसका साइज कैसा रहेगा? मेरे जैसा रहेगा। सो अगर एक ही टाइप के एटम है, क्योंकि हमने देखा एलिमेंट में क्या रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट रहता है, और एक ही टाइप का एटम अगर है तो उसका मास, उसका शेप और उसका साइज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, राइट। तो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सपोज वी टेक वन एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल ले लो एलिमेंट्स का। सपोज वी जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ आयरन एलिमेंट, इट्स सिंबल इज Fe। सो ये जो आयरन एलिमेंट है, अभी आयरन एलिमेंट कैसे बना हुआ है? दिस एलिमेंट इज मेड अप विद व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आयरन कैन कंबाइन विद ईच अदर। जो बहुत सारे आयरन के एटम क्या रहेंगे? कंबाइन होंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? आयरन एलिमेंट फॉर्म करेगा। अब मुझे बताओ, इस आयरन का मास, इस आयरन का मास, ये सब आयरन का मास क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा? इसका मास क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा। इसका साइज वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और इसका शेप ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सिंपल डाल्टन्स ने क्या बोला है? अगर कोई एलिमेंट्स है उसमें जो एटम प्रेजेंट रहते हैं वो सारे एटम का मास, शेप एंड साइज कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा, उसमें कोई भी वेरिएंस नहीं आएगा। एंड दैट थ्योरी, दैट इज द assumption of the Dalton's atomic theory, second assumption, that all the atom of an element having identical mass, shape and size। सिंपल सा है। अगर तुम लोगों ने रॉबर्ट मूवी देखा होगा, रोबोट, उसमें जो चिट्टी रहता है उसके वो क्या करते हैं? उसके क्लोन बनाया जाता है, बराबर है, राइट। रजनीकांत उसके क्लोन बनाता है, सारे क्लोन एक जैसा दिखता है, कोई डिफरेंस रहता है क्या? नहीं रहता है। तो उनका मास भी सेम। अगर कोई एक ही पर्सन 10 बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, 10 बार हम लोग एक कर रहे हैं, तो उसका मास, शेप एंड साइज एक जैसा रहेगा। सिंपल, एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम रहता है करके वहां पे जो सारे एटम रहते हैं सबका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक theory. Now move on the third postulates of Dalton atomic theory.
Now move on the third postulates. Atom can not be created nor destroyed by any chemical process. Now तुमने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में. एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. मान लो तुमको किसी ने जोर से थप्पड़ मारा तो क्या होगा? वो जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एज वेल एज साउंड एनर्जी. बराबर है, ये फिजिक्स का पार्ट है, मेरे को जितना पता है मैं बता रहा हूँ, राइट. सो यहाँ पे भी केमिस्ट्री में ये होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है. सिंपल इसका स्टेटमेंट क्या है? जो भी तुम लोग केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो वो केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड. वो हमेशा क्या होना चाहिए? वहां पे बैलेंस होना चाहिए, उसमें वेरिएंस नहीं होना चाहिए. सिंपल इसी का मतलब है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस. जितने एटम रिएक्टेंट में है, रिएक्शन होने के बाद उतनी एटम क्या रहेंगे? प्रोडक्ट में रहेंगे, राइट. ना इसको हम लोग क्या करते हैं? इलॉबरेट करते हैं. नाउ जस्ट सी. Now start with one simple example. तुमने 10th स्टैंडर्ड में एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, बराबर है. वहां पे हमने क्या था? NaOH when reacted with HCl. सिंपल सा रिएक्शन है. एसिड और बेस जब कंबाइन होते तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर, राइट. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है. ये बेस है, ये क्या है? तुम्हारा एसिड है. जब ये कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा? NaCl प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? H2O. NaCl क्या है? यहाँ पे सॉल्ट है, ये क्या है? तुम्हारा वाटर है. तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज रिएक्टेंट की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गई? चेंज हो गई. मींस दिस इज द केमिकल प्रोसेस, नॉट अ फिजिकल प्रोसेस. बिकॉज फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस है. केमिकल प्रोसेस में पुराने बॉन्ड ब्रेक होके नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं. यहाँ पे देखो NaOH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है. यहाँ पे HCl बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे नया NaCl का बॉन्ड और वाटर फॉर्म हुआ है. नाउ अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ एटम क्या रहता है? सेम रहता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. ये इसका थर्ड पोस्टुलेट. सो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये क्या है तुम्हारा? राइट हैंड साइड RHS, राइट. लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम है और कौन कौन से एलिमेंट्स है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और क्या? क्लोरीन है. नंबर ऑफ सोडियम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ क्लोरीन 1. नाउ लेट्स सी ऑन राइट हैंड साइड. सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सोडियम कितना है यहाँ पे? 1. ऑक्सीजन कितना है? 1. हाइड्रोजन कितना है? 2. क्लोरीन कितना है? 1. Means number of atom in a left reactant side is equal to number of atom in a product side. This is the third postulate given by Dalton's atomic theory. Simple है, simple इसको correlate करो. Energy can neither be created nor be destroyed. It can change from one form into another form. Energy की जगह हम लोग atom ला सकते हैं. Atom can neither be created nor be destroyed. It can change from one form into another form. या फिर हम लोग the number of atom in a reactant side is always equal to number of atom in a right hand side. This law is called as law of conservation of atom during chemical reaction. So this is the third postulate given by Dalton's atomic theory. Now move on the fourth postulate given by Dalton atomic theory. Now move on the four postulates. Atom of different element are different in nature. ना इसको अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं सेकंड के साथ, देखो atom of all the atom of given element are identical mass, shape and size, but यहाँ पे क्या बोला है? फोर atom of different element are different in nature, right? तो इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे इस पॉइंट को. अब इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? देखो, तो मान लो हम लोग क्या बोला है यहाँ पे? डिफरेंट एलिमेंट्स. अगर हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक हाइड्रोजन एलिमेंट लेता हूं एंड मैं एक ऑक्सीजन एलिमेंट लेता हूं, या फिर अगर दो अलग अलग पर्सन है, तो अगर मान लो मैं क्या लेता हूं? एक मोबाइल लेता हूं, राइट, और ये पेन लेता हूं. दो अलग अलग चीजें. अब बताओ दोनों का मास सेम है कि डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है. दोनों का शेप सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, बराबर है. दोनों का साइज सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना. तो यहाँ पे भी वही सिंपल चीज है. इसने क्या बोला डाल्टन्स ने?
अगर दो डिफरेंट एलिमेंट अगर हम लोग ले रहे हैं तो दोनों एलिमेंट का अगर हम लोग मास लेते हैं तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट आएगा। अगर उसका हम लोग शेप लेते हैं तो भी क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंट आएगा। अगर उसका हम लोग साइज लेते साइज भी क्या आएगा डिफरेंट आएगा। तो उसका क्या बोलना था, अगर दो अलग अलग एलिमेंट है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग different two different element having different atom and their mass, their shape and size also different, and that is the we can say that fourth postulates of Dalton atomic theory. बहुत सिंपल सा theory है, ठीक है, इसको तुमको क्या करना है, स्टडी करना है. Now let's once we can revise all these 4 points. So let's we can recall once again all the postulate. First postulate is that matter is made up of very small indivisible particle called atom. तो कोई भी यूनिवर्स का मैटर हो, either it is solid, liquid or gas, it is made up with the smallest particle called atom, and this atom is a undivisible particle. Atom is a undivisible particle. तो यूनिवर्स में कोई भी चीज है किससे बना है, एटम, और एटम is the smallest, it is indivisible. Second, all the atom of given element, अगर तुम्हारा एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम है, they all are identical in shape, size and we can say that mass, because we know that element consists of only one type of atom. Third, atom cannot be created nor destroyed by any chemical process. जब भी एक कोई chemical process होता है तो वहां पे क्या होता है, number of atom in reactant side is equal to number of atom in product side. This statement proves that your chemical reaction should be balanced chemical reaction with respect to number of atom in a reactant side and number of atom in a product side. Fourth postulates, atom of different element. We know that different elements are made up with a different atom. We take the example of hydrogen and oxygen. Both are different elements. Means if they are different, their masses are different, their size are different, their shape are different, and that's why Dalton's give 4 postulates. Atom of different element are different in nature. उनका nature क्या रहेगा, different रहेगा. Nature means with respect to their mass, with respect to their shape and size, they are totally different. So these are the postulates of the Dalton's atomic theory. I hope you can understand all the postulates, right, given by the Dalton's atomic theory. So if you like this video, please subscribe my channel, that is SR Academy of Chemistry, that is Sanjay Roy Academy of Chemistry, right. मैं ऐसे तुम्हारे लिए नए नए वीडियोस लाते रहूंगा, राइट. तो आज हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है, दैट इज डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. बहुत बेसिक लॉ है. नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस अबाउट द अदर थ्योरी, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, तो which laws we should follow when the chemical reaction can takes place, that we can discuss in next video, right. So I hope you can enjoy the video, right. If you enjoy, please subscribe my channel as well as like and press the bell icon so that you can get the notification of the video, right. Thank you and have a nice day.